Hello students, so my Leo Dow is going to help you in your preparation journey, JEE, Mains or Advanced or NEET UG for this, right? So today I'm going to teach you how, what is Lorentz force and what are its component definition and how a lot of its application, the real life application as well as in questions. Okay, one of the important question has been asked in NEET UG uh, very recently. Okay, so let's just start. So Lorentz force. So basically, when a charged particle enters into electromagnetic field, this Lorentz force acts on that charged particle, and this Lorentz force, this F is Lorentz force here, and it is comprised of electric force and magnetic force. And electric force on a charged particle, if we take a test charge q, right, then if it if it is present in electric field, what is the force acting on it? Q into E. You already must be knowing that. And if a charged particle enters into a magnetic field, okay, then the magnetic force is Q V cross B. By the way, I have blackened it, that means a vector, but I'll put it for your simplification. Okay, so these all are vector quantity. Vector is going to play a very important role here. Okay, so for example, let's take an example here. If by the way, I'm going to do a very important question at the end of this conceptual theoretical concept. So you must be able to solve that question once I'm done with this uh, concept part. Okay. So if a charged particle, let's say you have a test charge particle Q. So let me not call it plus Q. So this is, let's say this is the charged particle. This is entering in a magnetic field of B. By the way, this symbol means magnetic field is in the direction of uh, perpendicular to the screen of your device coming out of the screen, right? So first of all, this B is perpendicular to your screen or paper and it is coming out of that paper. Okay, so two things are there. If it was crossed, then it would be coming inside the plane of the screen, right? So moving on, this charged particle is entering into this magnetic field with velocity v. Now, if this charged particle has positive sign, q is greater than 0, it is going to take a turn in downward direction, right? Because in that direction, force is going to act. Which force am I talking about? Magnetic force. And what is that? Q v cross b, right? I will tell this about this magnetic force more in detail. Just wait. Okay, now if charge particle is less than 0, this is going to turn in this direction because this force's direction will be reversed. If it was positive, so reverse of this. Okay, now there are conditions what path this charge particle will follow if अगर वो इंटर कर रहा है किसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में ठीक है तो let me just show you the direction of that force, Lorentz force. So this is the Lorentz force. Now let me just explain this figure to you. Okay, so this is a charged particle on which magnetic field is acting in this direction. Velocity is in this direction. What it means is, इसका क्या मतलब है कि q charge particle जो है इस direction में move कर रहा है, right? v velocity से, ठीक है? Now इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इट डज नॉट मीन कि फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है? वेलोसिटी एंड फोर्स कैन एक्ट इन डिफरेंट डायरेक्शंस. ये सब मिसकंसेप्शन अपने माइंड से आप निकाल दो, राइट? सो कि जिस डायरेक्शन में मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, नो, इट इज नॉट नेसेसरी. ओके, आप देखो इस पे मैग्नेटिक फील्ड है, वेलोसिटी है, देयर इज इलेक्ट्रिक फील्ड acting on this charge particle. this this is the electric field. Okay, अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से there is going to be electric force and what is that? Q into E. So this big arrow is representing electric force. अब देखो फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स इस इन दोनों क्वांटिटीज की वजह से B और B की वजह से क्या होगा? V क्रॉस B, Q into V क्रॉस B. What would be its direction?
आप हमेशा ध्यान दो वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट में जो क्वांटिटी आती है, लेट्स से सी वेक्टर इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, राइट? सो सी वेक्टर की डायरेक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म्ड बाय ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है? ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे? दो लाइन होंगे ऐसे, राइट? इन दोनों से एक प्लेन बन रहा है, राइट? आपका स्क्रीन ही बन रहा है, मान लो ये वाला प्लेन, ठीक है? इसके परपेंडिकुलर होगा और उसका डायरेक्शन कहाँ होगा? आप अपना राइट हैंड लो, ठीक है, एंड पुट इट इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर की डायरेक्शन में लो पूरा पाम, फोर फिंगर्स, पुट दैट फोर फिंगर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, ठीक है, एंड थंब ऐसे परपेंडिकुलर टू द रेस्ट ऑफ द फिंगर्स, ठीक है। अब आप चारों उंगलियों को आप कर्ल करो टुवर्ड्स बी वेक्टर, ठीक है, तो थंब जो होगा दैट वुड गिव यू द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? फोर्स एफएम, ठीक है, मैग्नेटिक, सॉरी, द थंब वुड गिव यू द डायरेक्शन ऑफ सी वेक्टर। हम लोग ए और बी सी के टर्म में बात कर रहे थे, वही आप वी और बी के फॉर्म में बात करोगे तो वी की तरफ सारा करो, ठीक है, बी की तरफ, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाई वी क्रॉस बी। तो परपेंडिकुलर इसका वी क्रॉस बी का आउट ऑफ द स्क्रीन आ रहा है, तो वी कैन नॉट मेक आउट ऑफ द स्क्रीन, सो हमने यहाँ पे बनाया है क्यू बी क्रॉस बी, ठीक है। ये वाला जो कंपोनेंट, ये जो फोर्स है वी क्रॉस बी, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन फॉर्म बाई वी क्रॉस बी, राइट? और हमने क्यू ई देखा है इधर। अब क्यू ई और क्यू वी क्रॉस बी का एक रिजल्टेंट आएगा, आप वेक्टर शिफ्ट कर सकते हो, राइट? अगर उसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन नहीं चेंज करे, तो मैं इसको अगर इधर शिफ्ट कर लूं तो इसका रिजल्टेंट आ जाएगा ये वाला वेक्टर, ठीक है, ये वेक्टर पूरा ओरिजिन से यहाँ तक, ठीक है। सॉरी अबाउट द डायग्राम, ओके। सो ये आ जाएगा, तो यही F जो है आपका लॉरेंज फोर्स है, ठीक है। नाउ लेट्स मूव ऑन टू अदर कॉन्सेप्ट्स, रिलेटेड कॉन्सेप्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो, न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ये सारे नोट है, लेट मी एक्सप्लेन वन बाय वन टू यू। So Fm, what is Fm? Fm does not change. Fm is the magnetic field, right? So Fm does not change the velocity magnitude, but changes the direction only. क्यों भाई ऐसा क्यों होता है? ठीक है, जो मैग्नेटिक फील्ड है, सॉरी मैग्नेटिक फोर्स है, does not change the velocity magnitude, it but changes the direction only. देखो Fm है क्या? अभी 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 मैंने समझाया कि वो एक कोई एक सी वेक्टर है जो v वेक्टर क्रॉस v वेक्टर, राइट? जो सी वेक्टर है यानी ए, ये जो एफ एम है इसको सी मान रहे हैं ना हम लोग, अभी अभी एक्सप्लेन किया था, ठीक है, वो ए क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होता है, तो वी क्रॉस बी के परपेंडिकुलर होगा एफ एम, राइट? तो अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है तो वो वेलोसिटी को चेंज क्यों कर पाएगा भाई? अगर हम कोई फोर्स लगा रहे हैं वेलोसिटी के डायरेक्शन में, देन दैट फोर्स इज गोइंग टू change the velocity magnitude, not the force that is perpendicular to the velocity, right? This force is going to act perpendicular to the velocity as well as perpendicular to the magnetic field, right? अगर कोई प्लेन बन रहा है दो वेक्टर से और उसके परपेंडिकुलर आप कोई वेक्टर ड्रॉ कर रहे हो, ठीक है, ये परपेंडिकुलर मान लो इस प्लेन के, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो ये एफ एम हो गया, ठीक है। सो क्यों नहीं चेंज कर पा रहा वेलोसिटी मैग्नीट्यूड? क्योंकि दिस मैग्नेटिक फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। तो अगर उसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रहा है फोर्स, तो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड नहीं चेंज कर पाएगा, इट विल ओनली चेंज द डायरेक्शन ओनली, ठीक है। अभी कोई फोर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन में लगा दो, पक्का उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट पॉइंट में आपको ये समझ में आएगा कैसे। तो एफ ई इलेक्ट्रिक फोर्स, राइट? So electromagnetic force, sorry, electric force, right? QE. Fe is what? QE. Force due to electric field, right? So जो Fe है changes velocity as well as, sorry, magnitude, changes magnitude of the velocity as well as the direction. कैसे? Fe किसी भी चार्ज पार्टिकल पे लेट्स से प्लस क्यू है, तो और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, तो अगर ये इस इलेक्ट्रिक फील्ड में इंटर करता है तो फोर्स विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड,
एफ ही जो होगा उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में होगा, राइट। और चार्ज पार्टिकल का मोशन किधर होगा, उसी की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। ये चार्ज पार्टिकल विल मूव इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स भी उसी डायरेक्शन में लगेगा। तो वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, मोमेंटम, एवरीथिंग विल चेंज। वेलोसिटी मैग्नीट्यूड, राइट, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी वुड नॉट चेंज, ठीक है। मोमेंटम, momentum and velocity is the vector quantity, they both can change even if only direction is changing, right। और काइनेटिक एनर्जी तभी चेंज होगी जब मैग्नीट्यूड चेंज होगा, ठीक है। तो अभी समझ में आया, अ फोर्स हैज टू एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी देन ओनली दैट कैन चेंज इट्स मैग्नीट्यूड। नाउ अब थोड़ा मैग्नेटिक फील्ड फोर्स के बारे में जो है हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। अगर फाई, सो ओके, लेट्स एज्यूम इन आवर प्रीवियस फिगर V और B के बीच का एंगल कितना है, फाई, ठीक है। दिस एंगल इज फाई, फाई और थीटा कुछ भी ले लो आप। तो हाँ, अगर वो फाई 90 डिग्री है, ठीक है। नाउ टेल मी, इस फोर्स का जो F इक्वल टू क्यू V क्रॉस B, इसको मैग्नीट्यूड में लिखोगे तो क्या होगा, साइन फाई, राइट। फाई कितना है, 90 डिग्री, तो F का मैग्नीट्यूड कितना आ गया, क्यू वी बी, ठीक है। अब देखो, अगर फाई 90 है तो इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट, बाय द वे इस फोर्स का कोई भी कंपोनेंट विल नॉट कम इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, नहीं आएगा, राइट। वैसे भी डजंट मेक सेंस, एफ इज ऑलरेडी परपेंडिकुलर टू वी एंड बी, इट डजंट मेक सेंस कि एफ का कोई कंपोनेंट आएगा। और 90 डिग्री, तो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स, राइट। एंड दिस मैक्सिमम फोर्स, okay, now if phi is 90, then this charge particle is going to go on a circular path, path of the charge particle will be circular। और उस सर्कल में अगर किसी पार्टिकल पे मैक्सिमम और फोर्स इतना लग रहा है QVB, तो ये QVB किसके बराबर होगा, QVB will be equal to the centrifugal or you can say centripetal force, right, okay। तो हमारा जो रेडियस ऑफ द कर्वेचर, रेडियस ऑफ द सर्कल, सर्कुलर पाथ, यू कैन फाइंड इट आउट कैसे, यहाँ से एक भी कैंसिल हो गया, आर इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी अपॉन क्यू वी, ठीक है। और कितना टाइम पीरियड होगा, इस पार्टिकल सर्कुलेट करेगा ना, इस अपना रिपीट करेगा पाथ, राइट। तो इसका टाइम पीरियड एक, तो टाइम पीरियड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो एक टाइम पीरियड मतलब एक चक्कर पूरा लगा ले, एक सर्कल कंप्लीट कर ले, तो एक सर्कल कंप्लीट करेगा तो डिस्टेंस कितना होगा, 2πr अपॉन वेलोसिटी, ठीक है। तो 2πr वेलोसिटी, ओके, r की वैल्यू रख दो यहाँ पे, ठीक है। r की वैल्यू रखोगे तो क्या आ जाएगा, 2πmv अपॉन क्यू बी अपॉन v, v इज कैंसिल्ड आउट और t की वैल्यू यही आ जाएगी, ठीक है। तो t आ जाएगा आपका 2πm अपॉन क्यू बी, ठीक है, 2πm अपॉन क्यू बी। नाउ इफ एंगल बिटवीन v एंड b is less than 90, phi जो है less than 90, then path of the charge particle would be helix। कैसा पाथ पे जाएगा, हेलिक्स पाथ पे, ठीक है। तो पाथ में आपको ड्रॉ करता हूँ यहाँ पे, मान लो दिस इज द, दिस इज हाउ इट इज इंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड, और इस तरह से है कि वेलोसिटी वेक्टर एंड v वेक्टर आर एट लेस देन 90 डिग्री, ठीक है। मान लो ये, जैसे ये वेलोसिटी वेक्टर हो गया, इसके टेंजेंट पे होगा, राइट, यहाँ पे, और ये आपका आ गया b कुछ फाई पे, और ये फाई कितना है, लेस देन 90, ठीक है। तो एक हेलिकल पाथ पे आएगा, हेलिकल या आप स्प्रिंग को इमेजिन कर सकते हो हेलिक्स के पाथ पे। अब देखो, अगर हेलिक्स के पाथ पे जा रहा है तो इसकी पिच कितनी होगी, सॉरी, इस हेलिक्स की पिच, पिच का मतलब अगर आप यहां से ये वाले टर्न से ले रहे हो तो ये एक कंप्लीट हुआ और ये इधर यहाँ पे, राइट। तो इसकी डिस्टेंस, एक पिच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब देखो, अगर v क्रॉस b करते हो, q v क्रॉस b, देखो f इंटू, ओके, v क्रॉस b,
अब इस वेलोसिटी का दो कंपोनेंट आ रहा है क्या? आ रहा है, राइट। एक पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड आएगा, क्या हो जाएगा, v cos फाई, और एक परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, वो क्या हो जाएगा, v sin फाई, राइट। जो पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड होगा वो पार्टिकल को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाएगा, राइट। और जो परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड के, जो वेलोसिटी कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा, वो क्या करेगा, डायरेक्शन केवल चेंज करेगा, ठीक है। तो अगर आपको कहें कि एक टाइम पीरियड में वो फॉरवर्ड कितना चला, यही पिच के बराबर, ठीक है। और वो पिच के बराबर कितना हो जाएगा, और वेलोसिटी इनटू टाइम, डिस्टेंस है ना पिच, एक टाइम पीरियड में वो बस पिच के बराबर डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। तो ये हो गया, पैरेलल कंपोनेंट ही फॉरवर्ड डायरेक्शन में ले जा रहा है पार्टिकल को, तो वो वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, v cos फाई इंटू टाइम पीरियड क्या था, 2 पाई m/q, ऐसे आप निकाल लेना, ठीक है। अब देखो, इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन आया था, एप्लीकेशन। ओके, इस लॉरेंज फोर्स का एप्लीकेशन कहाँ होता है, साइक्लोट्रॉन में। और साइक्लोट्रॉन पे एक क्वेश्चन आया था नीट में, ठीक है। और ओके, इसका एक बहुत ही अच्छा, आपने अगर फ्लैश उस टीवी सीरीज का नाम था, राइट। तो फ्लैश में बहुत जिक्र किया गया इसका, पार्टिकल एक्सीलरेटर का। तो सब एटॉमिक पार्टिकल स्टडीज होती है विद द हेल्प ऑफ पार्टिकल एक्सीलरेटर। उसमें क्या करते हैं पता है, ब्रीफली मैं बहुत ही क्विकली बता रहा हूँ कि क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड में एक चार्ज पार्टिकल को इंटर कराते हैं, ठीक है। तो वो चार्ज पार्टिकल किस में इंटर होगा, किस पाथ पे जाएगा, सर्कुलर पाथ पे। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे लगाते हैं ना, इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैनेज करते हैं, जिससे ये आफ्टर रिवॉल्विंग ऑन अ सर्कल इट्स वेलोसिटी गेट्स इंक्रीज्ड। क्योंकि इलेक्ट्रिक फोर्स जो लगेगा उसमें, उसकी वजह से तो मैग्नीट्यूड चेंज होगा, राइट। मैग्नीट्यूड इंक्रीज होगा, तो इट विल रिवॉल्व ऑन अ सर्कुलर पाथ, ठीक है। तो ऐसे ये बड़े वाले सर्कल पे, सर्कल सर्कुलर पाथ पे तो जाएगा, बस उसका रेडियस इंक्रीज होता जाएगा एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होता जाएगा। अगर उस पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज हो गई जितना उनको चाहिए फॉर एप्लीकेशंस, किस एप्लीकेशन में, जैसे कैंसर ट्रीटमेंट में हुआ, या फिर और किसी पार्टिकल की स्टडी करना हुआ, सो देयर इज अ लार्ज हाइड्रॉन कोलाइडर इन सर्न। सर्न इज अ फ्रेंच वर्ड, उसके निमोनिक से बना है, फ्रांस में है, राइट। तो वहाँ पे यूज होता है। तो उसकी पार्टिकल, जब पार्टिकल एक्सीलरेटर, राइट, नाम से समझ आ रहा है कि पार्टिकल को एक्सीलरेट कर देना, तो वो एक्सीलरेट करते हैं मैग्नेटिक फोर्स से नहीं, वो एक्सीलरेट करते हैं किससे, सॉरी, मैग्नेटिक फोर्स से भी एक्सेलरेशन का रोल आता है, आगे देखना आप कैसे, वो इलेक्ट्रिक फील्ड से एक्सेलरेट करते हैं पार्टिकल को, ठीक है। आगे देखते हैं, प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीजेस द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज पार्टिकल, यही हमने बात किया अभी तक, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्विकली यहाँ पे कुछ कुछ रूल्स देख लेते हैं। जैसे अगर आपको देखना है कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर है, किसी कंडक्टर की वजह से, ठीक है, आप ये राइट हैंड थंब रूल लगाओगे। सो फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, जिसमें ये बताना मेरे लिए जरूरी था इसलिए मैं बता रहा हूँ। अगर थंब आपका क्या बता रहा है, थंब विल गिव यू द मोशन ऑफ द कंडक्टर। अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उसके मोशन की डायरेक्शन में थंब को रख दो। इंडेक्स फिंगर आपका मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। और मिडिल फिंगर विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द करंट, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये मोशन। तो आप ऐसे रख के किसी एक की डायरेक्शन निकाल सकते हो, स्पेशली मैग्नेटिक फील्ड की, ठीक है। और बाय द वे, देयर इज 90 डिग्री बिटवीन दीज फिंगर्स, राइट। सो यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। नाउ एक और रूल है, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर में आई करंट फ्लो हो रही है, तो यू कैन जस्ट यूज योर राइट हैंड एंड ट्राई टू होल्ड दिस वायर, ठीक है, डू नॉट डू इट एक्चुअली, ओके, wire, current carrying wire, you, unless there is insulation, right, okay, even though don't do it. So this thumb is going to represent direction of magnetic field, and curl, you should curl your rest of the fingers while you know, okay, while trying to hold this wire, right. So this thumb will give you the direction of magnetic field. No, sorry, I just reversed it, right. So thumb is the direction of, sorry, so thumb is in the direction of current here,
and this your curling direction will give you the magnetic field, right? So this is direction of current, and this curling direction, for example in this case, on this side it would be cross, right, and on this side it would be dot. Okay, so next, if you want to find out, so I have already told you how to find this direction of force. एक और है right hand rule. You can just spread your fingers like this is going to give you the direction of force, and this, if this will put your index finger in the direction of velocity, and if will put magnetic, sorry, middle finger in the direction of magnetic field. ठीक है, आप इसको समझना अच्छे से and try to apply it. Okay, now this is the question that was asked recently. I don't know the year. In NEET UG, when a proton is released from rest in a room, ठीक है, it starts with an initial acceleration a naught towards west, ठीक है, आप north south east west कर सकते हो, north south, this is east west, right? So this is where the acceleration is pointing out. So इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसमें इधर, और प्रोटॉन है तो दैट मीन्स प्लस ई, पॉजिटिव चार्ज है, और इधर एक्सलेशन है दैट मीन्स इधर फोर्स एक्ट करेगा, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो गई, इधर. सो ये आपको पता होना चाहिए, राइट, कि ऑन अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, और एक्सलेशन की डायरेक्शन वेस्ट है दैट मीन्स फोर्स की डायरेक्शन वेस्ट हुई. अगर फोर्स वेस्ट हुआ तो पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेस्ट में होगा, ठीक है. नाउ व्हाट वुड दैट बी, फोर्स, फोर्स क्या हो जाएगा, E इंटू कैपिटल ई, और ये फोर्स किसको बैलेंस करेगा, एम ए, इज इक्वल टू एम ए, तो ए नॉट, ठीक है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आ गई, एम ए नॉट अपॉन स्मॉल ई, ठीक है, और किस डायरेक्शन में, वेस्ट, ठीक है. तो हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज डन ऑलरेडी. नाउ सेकंड हाफ समझने के लिए आपको मैं एक बात बताता हूँ. व्हाट इज, व्हेन कैन यू चेंज एक्सेलरेशन, व्हेन कैन यू चेंज एक्सेलरेशन, ओके, बाय चेंजिंग वेलोसिटी, ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, चेंज वेलोसिटी, and velocity is a vector quantity, right? Velocity is a vector quantity. How can you change the velocity? By changing direction, number one. और क्या कर सकते हो, by changing magnitude, ठीक है. ये बहुत ही काफी लोगों को नहीं पता होता है जो मैं बताने जा रहा हूँ आगे, ठीक है, बहुत कॉमन कंफ्यूजन है. तो वेलोसिटी चेंज कर रहे हो कैसे, डायरेक्शन, या तो डायरेक्शन चेंज कर दो या तो मैग्नीट्यूड, ठीक है, या तो दोनों चेंज कर दो. थर्ड केस में क्या होगा, और बोथ, सॉरी, या क्या कर दो, चेंज बोथ, ठीक है, बोथ 1 एंड 2, ठीक है. नाउ मैग्नेटिक फील्ड, क्या मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लग रहा है एफएम, क्या करता है, क्या चेंज करता है इसमें से, अब तक आपको आंसर आ गया होगा अगर क्वेश्चन पढ़ा होगा आपने. इसमें से क्या चेंज करता है, मैग्नीट्यूड, ये चेंज करता है क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, नहीं, दोनों चेंज करने का सवाल ही नहीं उठता. क्या चेंज करता है, डायरेक्शन. तो मैग्नेटिक फोर्स की वजह से डायरेक्शन चेंज हो रही है वेलोसिटी की, ठीक है, सर्कुलर पाथ पे रोटेट हो रहा है हमेशा, वेलोसिटी की डायरेक्शन कीप्स चेंजिंग, राइट. नाउ अगर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, वी विल स्टिल कॉल इट, तब भी हम कहेंगे ना कि वेलोसिटी चेंज हो रही है, और वेलोसिटी चेंज हो रही है तो हमें एक्सीलरेशन मिलेगा. ऐसा कभी मत सोचना कि अगर देखो, अगर एक्सीलरेशन चेंज हो रहा है, सो अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है देन देयर इज गोइंग टू बी एक्सीलरेशन, राइट, ठीक है. तो इसी वजह से ये क्वेश्चन बना है, और इस क्वेश्चन में क्या है, आगे पढ़ते हैं. व्हेन इट इज प्रोजेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, यही ऐसे ही चल रहा था, ये वाला केस है, ठीक है, दिस वाज योर क्वेश्चन. अब इसको क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स नॉर्थ, मतलब ऐसे ही चलते में इसको प्रोजेक्ट किया, ये चलते में ही, या कह लो ऐसे भी वेस्ट पे भी ऐसे ही प्रोजेक्ट किया नॉर्थ में विद स्पीड v नॉट, ठीक है, इसको विजुलाइज करना. इट मूव्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन 3 a नॉट टुवर्ड्स वेस्ट.
अब देखो मैंने वो सारे रूल्स इसीलिए बताया था कि डायरेक्शन जानने के लिए। ठीक है, किस साइड में प्रोजेक्ट किया जा रहा है, नॉर्थ ना। तो वेलोसिटी की डायरेक्शन किधर हो गई, वी नॉट इधर हो गया। एंड इट मूव्स विद इनिशियल, और एक टोटल एक्सलेशन जो नेट एक्सलेशन आ रहा है वो किधर आ रहा है, वेस्ट में। और वो नेट एक्सलेशन कितना आ रहा है, 3 a नॉट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्रेजेंट है, इसीलिए मैंने नेट एक्सलेशन बोल रहा हूँ नेट, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से भी एक्सलेशन आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से भी एक्सलेशन आ रहा है। ठीक है, 3 a नॉट। तो टोटल मिला के कितना आ रहा है, 3 a नॉट। ठीक है, अब देखो, क्योंकि नेट पहला एक्सलेशन किधर था, वेस्ट में, टोटल भी वेस्ट में आ रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो एक्सलेशन आ रहा होगा वो भी वेस्ट में ही आ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से अगर एक्सलेशन वेस्ट में आ रहा है, तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर हुई, वेस्ट में। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन वेस्ट में हुई। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, पहले फील्ड डायरेक्शन निकाल लेते हैं, बाकी बाद में करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड होगा कितना, विल डू इट लेटर। पहले डायरेक्शन निकालते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आप कैसे निकालोगे, राइट हैंड रूल लगा दो। कौन सा, मैं अभी करता हूँ, अब वीडियो में जाके देखना ये वाला रूल। तो फोर्स की डायरेक्शन थंब को ले लो। ठीक है, और ये इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन वेलोसिटी, देन मिडिल फिंगर विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। करो यहाँ पे। तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, थंब, राइट। और इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन इज इन नॉर्थ, राइट। तो यस, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ गई, डाउनवर्ड, राइट। अगर आप ऐसे करो तो फोर्स की डायरेक्शन किधर है, वेस्ट में, राइट। और मोशन की डायरेक्शन किधर है, इंडेक्स फिंगर की डायरेक्शन किधर है, इन द टूवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ में प्रोजेक्ट किया गया, राइट। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, डाउनवर्ड, राइट। यस, तो आप करके देख लेना, 90 डिग्री पे स्प्रेड करना, रियली। ओके, सो ये आ जाएगा डाउनवर्ड। आप वैसे भी देख सकते हो फोर्स की डायरेक्शन, अगर एक डाउनवर्ड अगर कर लो मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो V क्रॉस बी, V से B की तरफ अपना फिंगर्स कर्ल करो। ठीक है, तो थंब जो होगा वो फोर्स की डायरेक्शन में आ जाएगा आपका। ठीक है, राइट। तो डायरेक्शन तो आ गया मैग्नेटिक फील्ड का, डाउन। एफ एम की डायरेक्शन किधर आ गया, डाउनवर्ड। सॉरी, एफ एम नहीं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आ गया डाउनवर्ड, राइट। नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक फोर्स, टोटल एक्सलेशन 3 a नॉट था, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक्सलेशन कितना है, a नॉट। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक्सलेशन कितना आ जाएगा, 3 a नॉट माइनस a नॉट। ठीक है, ये आ जाएगा 2 a नॉट। माइनस आई कैप डायरेक्शन है, मुझे डायरेक्शन लिखना नहीं चाहिए था। ए बी कितना आ गया, 2 a नॉट। अगर ए बी 2 a नॉट आ गया, तो मैक्स मिनिमम क्या पूछा है, मिनिमम इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है ना, सॉरी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मिनिमम पॉसिबल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये 2 a नॉट इंटू एम, एम इंटू ए किसको, किसकी वजह से हो रहा है, ये क्यू वी बी। ठीक है, तो क्यू कितना था, ई वी बी। ये मिनिमम मैग्नेटिक फील्ड क्यों कह रहा है पता है, क्योंकि अगर यहाँ पे ये साइन थीटा लगा दोगे, तो और साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम रख रहे हो, ठीक है, तो बी क्या होगा, मिनिमम। वैसे अगर साइन थीटा रख के देखो आप, तो एम इंटू 2 a नॉट अपॉन ई बी, ई वी साइन थीटा, राइट। अगर साइन थीटा मैक्सिमम रख रहे हो तो बी तो मिनिमम होगा ना, कोई चीज मैक्सिमम डिनोमिनेटर में रखे हो तो उस क्वांटिटी मिनिमम हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या निकालना था, मैग्नेटिक फील्ड। ये साइन थीटा को की वैल्यू 1 रखो, और आ जाएगा 2 m a नॉट अपॉन स्मॉल ई और वेलोसिटी, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड। ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन, कौन सा ऑप्शन सही हो, थर्ड वाला। ओके, सो थैंक you so much for watching the video.
Do share the video and do subscribe to the channel. Have a great learning. All the best. Thank you so much. Bye.